कार्यवाही जो है वो भी शुरू हो चुकी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर क्या कुछ कह रहे हैं अपने दर्शकों को दिखाते हैं। Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. Sir, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. One second. Please take your seat. Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware in this. Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the chairman, but no question shall be asked at the time of the statement is made. 1 second. Have some patience. Don't jump the gun. My permission was taken by the Honorable External Affairs Minister to make the statement today. There was a request from the leader of the opposition, and that was agreed by the Parliamentary Affairs Minister and leader of the House, that looking to the public sentiment and need for clarity, some brief interventions may be allowed. I examined the request that came from both sides, and I took the call
that I'll be making a departure that will not graduate to a precedent, and I would urge the members whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत मां का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन, सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए? अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन, सर, I'll close it then. Thank you. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर, एक लाइन, सर, वन लाइन, You made your point. सर, वन लाइन, Sorry. विद ड्यू रिगार्ड, देखिए, सर, जस्ट वन लाइन. 1 second. I made a departure, Yes. believing in everybody's commitment. Sir, I defer to everything. Tiruchi Shiva. Sir, No, just nothing, one line no, and- no. No. Shri Tiruchi Shiva. I will not. Please, take your seat. You have never done. For a change, obey the chair. Please, for a change. It will be the first of the kind from Shri Tiruchi Shiva. Please. Tiruchi ji, nothing is going on record. Shri Tiruchi Sharma. Shri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. What is this? You are a senior man and still doing it. Can there be a more abuse of a privilege extended? Thank you, Chairman, sir. Sir, thank you. Shri Tiruchi Shiva. Sir, it is not Sir, pointing it is fingers intervention. at anyone. The honorable member has misunderstood. It is intervention. Please go ahead. I said I allowed interventions. He can ask. Please go ahead. Chairman, sir, I said it is not pointing fingers at anyone. Just we need some clarifications. We accept that what the External Affairs Minister told that विदेश मंत्री एस जयशंकर को सुन रहे थे आप, राज्यसभा में जवाब दे रहे थे। जिस तरीके से 104 अप्रवासी भारतीय अमेरिका से जो डिपोर्ट किए गए थे उनको लेकर उन्होंने जवाब दिया। भारतीयों के अपमान पर सियासत में कोहराम मचा हुआ है, लगातार जो है वार पलटवार देखने को मिल रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने भी पलटकर जवाब दिया।
अवैध प्रवासियों को वापस लेना ही था। ये कहा गया अमानवीय हालात में अवैध प्रवासी फंसे हुए थे। हर हाल और हर साल अवैध प्रवासियों को भेजा जाता है। अवैध प्रवासियों को भेजने का तरीका नया नहीं है। भारतीय बुरे हालात में वहीं फंसे थे। ये बयान सामने आया विदेश मंत्री एस जयशंकर का। नियमों के तहत अमेरिका से वापस भेजा गया। पहली बार लोगों को वापस नहीं भेजा गया है। 2009 से 2025 तक के जो आंकड़े हैं वो आंकड़े भी राज्यसभा में रखे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। उन्होंने बताया कि साल दर साल किस तरीके से जो अवैध प्रवासी हैं उन्हें भेजने का तरीका किस तरीके से रहा है, किस तरीके से किस संख्या में अवैध प्रवासियों को भेजा गया है अमेरिका से हिंदुस्तान। नियमों के तहत अमेरिका से वापस भेजा गया। यह कहा गया विदेश मंत्री के द्वारा भारतीय बुरे हालात में वहीं फंसे थे। अवैध प्रवासियों को भेजने का तरीका नया नहीं है। हर साल अवैध प्रवासियों को भेजा जाता है। यह कहा गया विदेश मंत्री के द्वारा पहली बार लोगों को वापस नहीं भेजा गया। नियमों को देखकर नियमों के तहत अमेरिका से वापस भेजा गया है। भारतीय बुरे हालात में थे, उन्हें वापस लेना ही था। अवैध प्रवासियों को भेजने का तरीका नया नहीं है। यह कहा गया विदेश मंत्री के द्वारा पहली बार लोगों को वापस नहीं भेजा गया है। नियमों के तहत अमेरिका से वापस भेजा गया है। 2009 से 2025 तक के आंकड़े भी विदेश मंत्री के द्वारा सदन में रखे गए। सभी के समक्ष उन्होंने ये आंकड़े रखे किस तरीके से 2009 से अवैध प्रवासियों को जो भेजा गया वो आंकड़े किस तरीके से रहे हैं और किस तरीके से साल दर साल अवैध प्रवासियों को अमेरिका डिपोर्ट करता रहा है। और इस साल जिस तरीके से 104 अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया गया भारत, उसकी जानकारी भी विदेश मंत्री ने दी है। नियमों के तहत अमेरिका से वापस भेजा गया है। ये कहा गया पहली बार लोगों को वापस नहीं भेजा गया, विदेश मंत्री के द्वारा कहा गया है। अवैध प्रवासियों को भेजने का तरीका नया नहीं है। विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रहा है। विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि मानवता को आधार बनाकर लोगों को लाना चाहिए था। हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में जंजीरें थी और इस तरीके से माताओं, बहनों और बच्चों को लाया गया है। साथ ही साथ विपक्ष इस बात का भी मुद्दा बना रहा है कि जिस प्लेन से 104 भारतीयों को, अप्रवासी भारतीयों को वापस लाया गया, उस प्लेन में वॉशरूम भी नहीं था, केवल एक वॉशरूम था। भारतीयों के अमेरिका से वापस पर हंगामा देखने को मिल रहा है। वापसी पर हंगामा लगातार जारी है। संसद में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है और प्रवासियों की वापसी के तरीके पर सवाल उठाए। प्रवासी भारतीयों को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन देखने को मिला। हथकड़ी बांधकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें भी इस बीच हैं। संसद परिसर से तस्वीरें। दीपेंद्र हुडा इन तस्वीरों में इस वक्त नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव यहां पर नजर आ रहे हैं। तो तमाम बड़े चेहरे जो है नजर आ रहे हैं विरोध प्रदर्शन करते हुए। और हथकड़ी बांधकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया गया है। भारतीयों के अमेरिका से वापसी पर यह पूरा हंगामा है। संसद में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया है और प्रवासियों की वापसी के तरीके पर सवाल उठाए गए हैं। आपत्ति यहां पर दर्ज की गई है। हथकड़ी बांधकर संसद परिसर में प्रदर्शन किया गया। बंदी बना के लाना, ये बंदी बना करके जो लाने का काम हुआ है, अब विश्व गुरु और विश्व गुरु बनने का रास्ता क्या है? ऐसा ही होगा विश्व गुरु बनने का रास्ता कि आपके भारतीय लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजा जाएगा भारत। देखिए, मैं तो अमेरिका सरकार की इस रवैये से बहुत ही दुखी हूं।